آج مجھے ایک فریڈم فائٹر کی خبر ڈھونڈنی ہے، ایک پنجابی فریڈم فائٹر جس نے انگریزوں کو ناک وچانے چپا دیے۔ سر نظام لوہار کہڑے قبرستان وچ دفن ہے؟ ایسے بڑا قبرستان ہے پنجاب کا ایک سپوت جس نے انگریزوں کے خلاف پنجاب چھوڑ دیو تحریک چلائی، پنجاب کا ایک بیٹا جو انگریز اور اس کے مقامی ہواریوں کے غریب کسانوں پر ظلم برداشت نہ کر سکا، نظام لوہار جو اپنی بھٹی میں اسلحہ بنا کر فریڈم فائٹرز کو دینے لگا، اور پھر ایک دن ایک کیپٹن کول نے نظام کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر چھاپا مار کر اسلحہ بنانے والی بھٹی دریافت کر لی۔ اس کی ماں پر تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ اس کی ماں مر گئی، اس کی بہن کے کپڑے تار تار کر دیے۔ نظام کا پارا لبریز ہو گیا، اس نے اپنی بہن کا عقد اپنے ایک دوست شفیع سے کروایا اور تھانے جا کر کیپٹن کول کو گولی مار دی، قتل کر دیا، اس کیپٹن کو جس نے اس کی ماں کو مارا تھا۔ اس قبرستان میں کہیں نظام لوہار دفن ہے، جرت اور بہادری کا نشان۔ میں قبروں کے خطبے پڑھتا جاتا ہوں لیکن نظام کے نام کی تختی نظر نہیں آتی۔ گرمی کی شدت، پیاس اور قبرستان کی دھول۔ نظام بھارتی پنجاب کے گاؤں ترن تارن میں پیدا ہوئے لیکن شہید قصور میں ہوئے۔ یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور ہمیں میرا خیال ہے کہ دوسری طرف جانا ہوگا۔ سڑک تو موڑ مڑو بالکل سجا چوک سڑک آپ تھوڑا جہا اگے جاؤ تو سجے ہاتھ قبرستان ایک دربار بنیا ہے اور دربار کے نال۔ خیر اس کے بعد نظام نے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رونالڈو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اس کے کئی ساتھیوں سمیت۔ اور جب انگریز پولیس لاش لینے کے لیے دھپ سڑی پتن پر پہنچی تو اس کی لاش میں ایک پرچی گڑی ہوئی تھی، نظام کی بنائی ہوئی پرچی۔ اب نظام انگریز کے خلاف دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ انگریز بھی کون سا کم تھا، اس نے 10,000 روپے انعام 4 مربع زمین اس شخص کے لیے انعام کے طور پہ رکھ دی جو زندہ یا مردہ نظام کو پکڑ کر لاتا۔ انگریز کے کون سا باپ کی زمین تھی جسے چاہتے بانٹ دیا کرتے تھے؟ یہاں اس خطے میں جاگیرداری متعارف کروانے والے ہیں ہی انگریز۔ نامور ہستیاں کیڑی کیڑی ہیں جی؟ آپ سے قرآن بیان ہے، صحابی بیان ہے، صحابی ہاں جی میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹائم دے سی۔ اچھا ہاں جی وہ بھی اتنے بابا فرید کونیاں پار آئے بابا فرید کہدے کول بابا جی پپوڑیاں پا رہے ہیں۔ ہاں جی انہیں سلام لیا کوئی جواب ہے وعلیکم السلام آج سرکار سلپ روپے وہ پھر سرکار خواجہ ڈیمنڈ ہوئی کسی دے کونیاں پار گیا نہیں، پیریں چل کے نہیں گئے۔ جاؤ دکھاؤ سانو جی۔ چلو چلو لے کے چلو دکھاؤ انہیں۔ یہ بابا جی بہت ہی پراسرار سے ہیں، خمیدہ کمر کے ساتھ جھک کر چلتے ہیں اور متجسس آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس ماحول کی ہیبت میں اضافہ کر رہا ہے۔ کیکر کے درختوں سے گزرتے گزرتے کسی جگہ کی نشاندہی کرتے جا رہے ہیں۔ زمین تو نا سائڈ سائڈ تے رہے کیوں سپ آپ دی پناہ چھڑ دے نے تے قدم رہندے نال ہی لٹ پلٹ ہو جاندے بندے دے ان جے حساب دے نال نشان قدم اتنے آیا دب کے رہے۔ مجھے تو نظام لوہار کی قبر پہ جانا ہے لیکن یہ مجھے کہیں اور ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑا بڑا زہریلا جانور بہت سانپ سنگو وہ چھپلی جو ہوتی ہے بڑی بڑی وہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے علی جگہ ساری سپاں دیاں خدا کنیاں بھی ساری سپاں دیاں۔
यहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है किसी और का, क्योंकि बाबा जी ने किसी को बुला रखा है। यार फिर आ रहे हो पता नहीं सी कुछ हमें बहरहाल निज़ाम लोहार की कब्र ढूंढनी है और ये बाबा जी ही हमें वहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले बाबा जी पूरे कब्रिस्तान का विज़िट करवाना चाहते हैं, इसकी क़दामत के बारे में बताना चाहते हैं, इन क़ब्रों के क़दीम होने के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छी बात है। ओ बाबा को ये शाही से कहानी ये तार तो मंगे रहे मैं तार तो कुछ पाया नहीं आओ ते गुज्जर कराने ने मिलना सरकार। खैर, आप बाबा जी की आंखें ज़रा देखिए, बाबा जी का चलना देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे मैं हज़ारों बरस पहले किसी हिंदुस्तान में आ गया हूँ। फरमाते हैं निज़ाम लोहार की क़ब्र भी दिखाएंगे, बस इस उम्मीद पर इनके साथ हो लिए हैं। नीचे साहब ये वो दरख्त है जहाँ बुज़ुर्ग सांपों का जोड़ा रहता है, आप भी देख लीजिए। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश तूफ़ान बादो बारा बनकर बरसने को है। बाबा टाल पक्की पकाई गल आपकी रहमत नाल रोक दे बारिश हज़रत अल्लाह शाह बहारी रहमतुल्लाह सिख दे। सांपों का जोड़ा जो कभी कभी इंसानी शक्ल में सामने आ जाता है। सांपों का जोड़ा है काला शाह। अच्छा एटे फन ने ठीक है, इंसान के रूप च भी आंदा है ते दूसरे रूप च भी आंदा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ इंसान के रूप की चीज मैंने देखा है। ਜੈਸੇ चिट्टी चिट्टी दाढ़ी है माशाल्लाह सफेद। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ये अख नहीं चमकदा। कम से कम वो साढ़े कोल घंटा अद्धा घंटा बैठा रहा है, उनकी अख मैं जब कितनी दफा अख में चमकना है 900 ना थोड़ा ना पीछे हट गया दादी भैया। मैं इन बातों पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल इन बाबा जी का कहा मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें निज़ाम लोहार की ख़बर पे लेके जाना है। तो जनाब अंग्रेज़ ने निज़ाम लोहार के सर की कीमत रख दी, और उधर देहात वालों ने ऐलान कर दिया कि जेड़ा निज़ाम दी मुखबरी करेगा उसका घर साड़ दिता जाएगा। यानी जो निज़ाम की मुखबरी करेगा उसका घर जला दिया जाएगा। एक दिन अंग्रेज़ पुलिस ने पट्टी के कब्रिस्तान पर छापा मारा, लेकिन निज़ाम पहले ही सोही की तरफ निकल गया था, और रास्ते में उसे सूजा सिंह की माँ जेता बैन करती नजर आई। उसके बेटे सूजा सिंह को पुलिस ले गई थी। निज़ाम वहीं से टिब्बा कमाल चिश्ती की तरफ रवाना हुआ और सूजा सिंह को छुड़ा कर ले आया। दोनों ने मिलकर 4 आला अंग्रेज़ पुलिस ऑफिसर कत्ल कर दिए। जेता ने निज़ाम को अपना मुंह बोला बेटा करार दे दिया। अब वो वहीं रहने लगा था। साथ वाले गांव से जबरू जट भी उनके साथ मिल गया, और तीनों ने मिलकर पंजाब छड़ दो तहरीक का आगाज़ किया। यानी अंग्रेज़ों को ललकारा कि पंजाब छोड़ दें, पंजाब से निकल जाएं। उन्होंने बहुत से किसानों को भी साथ मिला लिया। साहूकारों का माल असबाब लूटा जो आज की दुनिया में यकीनन जुर्म गर्दाना जाता, लेकिन अंग्रेज़ के पंजाब पर जबरी कब्ज़े और किसानों पर जुल्म को पंजाबियों ने कभी माफ़ नहीं किया। अब यूं होने लगा कि मेलों ठेलों में निज़ाम ने ताक ताक कर अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया। लूट के माल से अपनी मुंह बोली बहन मोनी का घर बसाया, और एक मेले से वापसी पर इंस्पेक्टर आइस को कत्ल कर दिया। एसपी जॉन लीव ने निज़ाम को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाया, मुज़ाकरात का जाल, लेकिन निज़ाम समझ गया, भेस बदल कर वहां पहुंचा जहां बुलाया गया था, और एसपी जॉन लीव को कत्ल करके भाग गया। और अंग्रेज ने फिर वही किया जो हमेशा करता आया है। सूजा सिंह के साथ एक लड़की को नत्थी कर दिया, जिसने सूजा सिंह से कहा कि निज़ाम पकड़ा गया तो सीधा फांसी लग जाएगा, लेकिन तू मुफ्त में मारा जाएगा। 10,000 रुपया ले, 4 मुरब्बे ज़मीन ले और चल कहीं दूर निकल जाए। जिस दिन निज़ाम सूजा सिंह के घर जेता यानी अपनी मुंह बोली माँ की तीमारदारी के लिए आया हुआ था, सूजा सिंह ने पुलिस को मुखबरी कर दी, और पुलिस ने उस कमरे को घेर लिया जिसमें निज़ाम सो रहा था। निज़ाम ने सर पर लोहे का तांबिया पहनकर भागने की कोशिश की, सीटी बजाई, घोड़ी को बुलाया, लेकिन सर दरवाजे से टकरा गया क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और वो बेहोश हो गया। पुलिस ने 48 घंटे तक उस कमरे पर गोलियां बरसाई, जहां निज़ाम बेहोश पड़ा था। जेता को अपने बेटे सूजा सिंह की मुखबरी करने का पता चला तो उसने अपने बेटे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश पर खड़े होकर कहा, सूजिया जांदियां जांदियां एक होर दुख भी नाल लैके जा, मैं तेनू
बत्ती तारा नहीं बख्शांगी, जबरू गवा रही मैं उन्हें क्यों मारे आई। यानी अपने बेटे की लाश पर खड़े होकर कहा, सूजा सिंह मरते मरते एक और दुख भी साथ लेकर जाओ, और वो ये कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। और फिर जबरू जट को गवाह बनाकर कहा, तुम्हें पता है कि मैंने इसे क्यों मारा। इसने मुखबरी की थी उसके मुंह बोले बेटे निज़ाम के लिए। लोग जूक दर जूक निज़ाम को देखने आने लगे तो अंग्रेज़ों ने जनाजे में शिरकत के लिए 2 रुपये अदा करने की पाबंदी लगा दी। उस ज़माने में 2 रुपये बहुत थे, और कुल 35,000 रुपये इकट्ठे किए अंग्रेज़ ने निज़ाम की लाश पर। निज़ाम के जनाजे में लोगों का जमे गफीर था। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये कुछ कब्रें हैं, कुछ बहुत पुरानी कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, यहाँ सैकड़ों बरस पुरानी कब्रें मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं। आप भी कसूर के इस कब्रिस्तान का विज़िट कीजिए, हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।